Hello, friends. Namaskar. Warm welcome. And in this edition, we are going to pick up again very important facts, very important developments, and also ideas with respect to what is happening in the contemporary world in India. The goal is to make you understand what are the concepts, what are the ideas, and what is happening so that you can filter out the right thing and which will be helping you to prepare for the civil services examination in different domains, different ideas, different platforms. इट इज नॉट अ वन वे ईट ऑल प्रोसेस कि आपने बोल दिया और आपने ले लिया और ना ये बाई वन गेट वन वाला चक्कर है. So welcome to Ansarkari and please do share and like and subscribe our channel and let's make it success with your hard work, commitment, integrity and also your consistency. So this is only one of the key things which is need to be done along with thousands of other things which is required for the examination, but definitely this is one of the most important things. तो चलिए, let's take up key areas. For example, the first thing is that how a new chief justice is uh, succeeded or recommended. This is what is being asked. So the present CJI Honorable Lalit sir, he will be recommending as per procedure. तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि as per procedure, that is as per the MOP, Memorandum of Procedure on the Appointment of Chief Justice of India and the Supreme Court Judges. Honorable Minister of Law and Justice Kiran Rijiju ji ne, he has sent a letter to the Honorable Chief Justice of India for sending his recommendations for appointment of his successor. तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी, ये प्रोसीजर है. इसके अंदर जो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस, उसका नाम दिया जाता है. So Chandrachud sir's name is being given and Rijiju sir is asking it. So MU stipulates that the law minister would at an appropriate time, पर वो पूछेंगे तो appropriate time का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी एक महीना बचा हुआ है तो that is why he is going to ask. So this process is convention. एक महीना पहले पूछा जाता है, दैट इज वाई ही इज बीइंग आस्किंग. और जो कोलेजियम है, दैट कोलेजियम आल्सो इट गेट्स frozen and new collegium comes into picture. So this is one of the key facilitation, this is one of the key procedures and this is one of the key ideas. एक बात तो ये हुई. दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात अगर हम करें that the government has appointed ex-CJI as the head of the panel on SC status for Dalit converts. Former Chief Justice of India KG Balakrishnan sir has been appointed as the head, and notification is given by Minister of Social Justice and Empowerment. और जो कमीशन है it will include and retired IAS officer Dr. Ravinder Kumar Jain and UGC member Professor Sushma Yadav as its members. 2 साल में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और स्टडी क्या करना है, the social, economic and educational status of the members of SCs who have converted into other religion, that is mainly Islam and Christianity, because the Constitution Schedule Caste Order 1950 stipulates that no person professing religion different from Hinduism, Sikhism and Buddhism can be deemed to be a member of scheduled caste. ओरिजिनली सिर्फ हिंदू थे, उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया तो उसके बाद जो है सिख को इंक्लूड किया गया और बाद में बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया. दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक अबाउट इट. Please do look at the PDF also, do look at the timestamps also, because everything is being done in a scientific manner so that you can learn and take out your own analysis. Because ready to eat food तो वैसे भी शरीर के लिए नुकसानदेह है in general, but we must learn how to inculcate and how to use our skills. जैसा कि आपके सामने जो वी अनंत नागेश्वरन सर हैं, दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी ऐसा कहते हैं. वो भी कोई रटे रटाई बात नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई 7% अगर सिनेरियो ग्रोथ रेट का हुआ तो दैट इज वंडरफुल. लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं डॉलर जो है अभी भी व्हीकल है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड का, फाइनेंशियल मार्केट का, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स का डॉलर व्हीकल है. हमें टाइम लगेगा. रुपए को अगर आप इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो, इट इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, बट इवोल्यूशन विल हैपन विद टाइम. सो what word he is using? Instruments of international power relations. So dollar is an instrument of international power relations. अभी जो कंट्रीज हैं, ईरान है, चाइना है, रशिया है, दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट बार्टर अरेंजमेंट्स और ट्रेडिंग सेटलमेंट्स अदर देन डॉलर. इवन ब्रिक्स भी ऐसा कोशिश कर रहा है. सो वो प्रोसेस जो है नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि एक और टर्म इन्होंने क्या यूज की, वेपनाइजेशन ऑफ करेंसीज.
यानी कि if Russia is having sanctions or Iran is having sanctions, they can't use dollar. तो weaponization of currency हो गया ना. तो weaponization of currency is weaponization of forex reserve. So इसीलिए अल्टरनेट टू डॉलर इज बीइंग, यू नो, कंट्री सोचती तो है, चाइना ने भी सोचा, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है. बट इंडिया विल ग्रो, इंडिया इज ग्रोइंग इन साइज, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है. सो इट्स अ लॉजिकल स्टेप टू इंटरनेशनलाइज द इंडियन रूपी. होगा वो, लेकिन थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, you know, just like that, ki suddenly we are going to suddenly it is going to happen. But definitely it is going to happen. That is what we can really understand कि हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस है. तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है, जैसे मैंने कहा, कि हमारे यहाँ इंडिकेटर्स होते हैं, हर एक जगह इंडिकेटर्स. फॉर एग्जांपल, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स. आपसे पूछा जाए इकोनॉमी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या है, भाई आप कितने बार पेट्रोल डलवा रहे हो, वो भी एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है ना पेट्रोल पंप पे. तो सो फुटफॉल, रिटेल फुटफॉल, एयर ट्रेवल, फ्रेट बुकिंग्स, ये सब क्या है, हाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं. सो इफ दे आर वेरी वेरी हाई, इफ दे आर गोइंग ऑन, दैट मीन्स इकोनॉमी इज मूविंग ऑन. अगर कुछ लैग कर रहा है, लैग क्या कर सकता है, मान लो सर्विस है, कॉन्टैक्ट होटल है, रेस्टोरेंट है, even if they are improving and they have not reached a very high level, तो इसका मतलब वो भी improve कर रहे हैं. तो we have to be watchful. That is what he is saying with respect to future of our economic growth. लेकिन ये कि अब अगर हम माल लगाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सटर्नल एड चाहिए. अब एक्सटर्नल एड क्या होती है, हम कोई हाथ तो फैला नहीं रहे हैं. वी वांट एफडीआई और एफआईआई. पीटी में क्वेश्चंस भी आते हैं, एफडीआई पे भी क्वेश्चन आता है, एफआई पे भी क्वेश्चन आता है, उनके डिटेल्स भी आप देख लीजिए. तो एफडीआई और एफआईआई दो कंपोनेंट्स हैं. उसके अलावा भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स, तो मेंस के लिए आ सकता है आपका व्हाट आर द कंपोनेंट्स. तो मेंस में आपको दो दो लाइन लिखनी पड़ेंगी, बायलेटरल क्रेडिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, और उसके बाद जो है आपको बाकी एफ आई एफ डी आई तो लिखना ही पड़ेगा. सो नॉट नेसेसरली दैट वी हैव टू गो फॉर एवरीथिंग, बट वी हैव टू बी वॉचफुल एंड वी हैव टू टेक केयर. सो commodity prices, if they are going to be very high, then there is going to be rise in inflation. Commodity prices का एक benchmark है, and it should not be breached in general sense. And there is a security net. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी नेट, चाहे फिर वो आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो वयोवृद्ध योजना हो, चाहे फिर वो किसान सम्मान हो, चाहे फिर वो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, चाहे फिर आपका मतलब दीज आर ऑल सोशल सिक्योरिटी नेट्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इट इज देयर. करंट फाइनेंशियल ईयर्स में थिंग्स आर मूविंग ऑन, but there are headwinds as we have already discussed in a couple of our previous lectures also. So rupee is going to fall, but then it is not falling as other currencies are falling about. So emerging economies में India is doing better, it is stronger, and obviously हम ये नहीं कह सकते it is good or bad, ऐसा नहीं कह सकते. पॉइंट ये है कि स्टोरी इज नॉट ऑफ कि इंडियन रुपी वीक हो रहा है, द स्टोरी इज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ. कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डॉलर अपने स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे. दैट इज द बेस्ट पॉइंट. इट इज नॉट अबाउट रुपी बीइंग वीक. सो दिस इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अगर आप सोचेंगे, देन यू आर गोइंग टू टेक अवे कपल ऑफ वेरी गुड पॉइंट्स इन अंडरस्टैंडिंग, and they are really going to help you both for the prelims and the mains as far as this economic concept is concerned. A new concept we are discussing is e-rupee. E-rupee, e-rupee is a concept to be given by CBDC. ई रूपी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं, टू बी गिवन बाय आरबीआई फॉर स्पेसिफिक यूज पर्पसेस. तो सीबीडीसी देगा, फिर से मैंने गलत बात बोली, आरबीआई देगा, सीबीडीसी को देगा, ई रूपी को देगा. सो ई रूपी क्या है, ई रूपी इज सोवरेन पेपर करेंसी के जैसा है वो, लेकिन उसका फॉर्म डिफरेंट है. एक्सचेंजेबल है एग्जिस्टिंग करेंसी के जैसा ही है, हाँ भाई बिल्कुल वैसा ही है. क्या मीडियम ऑफ पेमेंट बनेगा, बनेगा भाई. लीगल टेंडर है, जैसे आपका 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट है, हाँ वो भी है. क्या उसकी सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू होगी, होगी भाई. और डिजिटल रुपी जो है वो लाइबिलिटी होगा सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे, बिल्कुल होगा. तो यानी कि ई रुपी और नॉर्मल रुपी में इस एंगल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन evolution of currency, it is evolution of currency, it is a change in the nature of money and its functions. ये सबसे बड़ी बात है, चेंज इन द नेचर ऑफ मनी एंड इट्स फंक्शंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. क्यों है ऐसा, क्योंकि ई रूपी कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज टोकन बेस्ड
या फिर अकाउंट बेस्ड, दो तरीके से हो सकता है। टोकन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या हो सकती है? टोकन बेस्ड होगा कि वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बैंक नोट होते हैं, आप पढ़िए नोट के ऊपर भी लिखा होता है। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो, इसके पास होगा उसी का हो जाएगा, और उसी को प्रिज्यूम किया जाएगा उस समय उसका वो ओनर है। जबकि अकाउंट बेस्ड सिस्टम में देयर विल बी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल होल्डर्स ऑफ सीबीडीसी, और ओनरशिप मॉनेटरी बैलेंसेस की तब मानी जाएगी। तो यानी टोकन बेस्ड सीबीडीसी में पर्सन जो टोकन को रिसीव करेगा वो वेरीफाई करेगा भाई, कि मतलब वो वेरीफाइड होगा कि उसकी ओनरशिप है जेन्युइन की नहीं है। जबकि अकाउंट बेस्ड में इंटरमीडियरी वेरीफाई करेगा, यानी टोकन में बंदा खुद कर रहा है और इंटरमीडियरी में आइडेंटिटी ऑफ, मतलब एक इंटरमीडियरी वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी जो है, जो जो उसकी होगी, अकाउंट होल्डर की होगी। यानी कि दोनों फॉर्म, यानी कि जो जो ये सीबीडीसी के दोनों फॉर्म्स हैं, टोकन बेस्ड फॉर्म और जिसको आप कह लीजिए सीबीडीसी आर कहा है जिसको आरबीआई ने, वो फिजिकल कैश की तरह होगा। जबकि अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी जो है वो क्या होगा? सीबीडीसी डब्ल्यू। एक हो गया सीबीडीसी आर, एक हो गया सीबीडीसी डब्ल्यू। तो सीबीडीसी डब्ल्यू जो है वो कैसे, वो किसके लिए होगा? वो होगा आपके होलसेल मार्केट के लिए, एसेट क्लासेस जिसको हम कहते हैं, जैसे बायलेटरली, या फिर जो वो जो जो आपके ये जो आपके कैश डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं जो, या फिर आपके कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके उनके अरेंजमेंट से वो, मतलब उनके उनके उनसे रिलेटेड होगा बेसिकली, दैट्स आई वांट टू से। यानी आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, यू नो, एसेट्स को, इफ यू वांट टू एक्सेस एसेट, जैसे जी सेक्स एंड सिक्योरिटीज हैं, जी सेक्स हैं, दे आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड वेरी वेरी, उनमें कॉन्फिडेंस शो करते हैं इन्वेस्टर्स। या फिर ऐसे एसेट्स को आप लेना चाहते हो जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बॉन्ड्स या फिर इन्वेस्टर के फॉर्म में रिलीज करती है, तो उस केस में बैंक रूट को बाईपास करके आप जी सेक्स ले सकते हो। और धीरे धीरे ऐसा भी है कि बाद में इसको नॉन रेजिडेंट्स को भी आप जो है, you can what I should say, it will be extended to non resident Indians also. RBI basically it is opposing cryptocurrencies. RBI is opposing private cryptocurrencies because it believes it is going to threaten macroeconomic and financial stability of India. तो इसीलिए वो कहती है कि उनका करेक्टर जो है, आरबीआई की जो एबिलिटी है उनको डील करने की, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डील करने की एबिलिटी को कमजोर करेगा। दैट इज वाई दे आर नॉट इन फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बट सीबीडीसी का मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो इस बात से डिपेंड करता है कि वो डिजाइन कैसे की जाएगी और उसकी डिग्री ऑफ यूसेज कितनी होगी। मतलब कि सीबीडीसी जो है वो नॉन रेम्यूनरेटेड होगी कि रेम्यूनरेटेड होगी, और वो वाइडली एक्सेसिबल होगी कि नहीं होगी। जैसे आज की डेट में फिजिकल करेंसी है वैसी रहेगी, कि या होलसेल मार्केट, जैसा अभी हमने कहा स्टॉक शेयर सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट की जो हम बात करते हैं उस तक रहेगी, होलसेल कस्टमर्स तक रहेगी जैसे बैंक्स हैं। और फिजिकल करेंसी तो अनोनमस है, आपने जेब में 500 का नोट है किसको पता है। लेकिन सीबीडीसी में क्या आपके पास है वो वेरीफाइबल रहेगा, क्योंकि ट्रेल ऑफ डिफरेंट एंट्रीज तो पता लग जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी है, डिजाइन की बात है, डिजिटल रुपी की बात है, मैकेनिज्म्स की बात है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सीबीडीसी के, वो भी सोचिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, प्राइवेसी इश्यूज की बात है, तो ये सारे इश्यूज है, मेंस का एक क्वेश्चन बन जाता है। अब पीटी के लिए भी आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली हैंडल इट। तो मोर द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज एंड एडवांटेज ऑफ ई रूपी, वो जो है वो टोकन बेस्ड वेरिएंट की बात है रिटेल सेगमेंट में, ऐसा आरबीआई का अभी तक का कहना है। बाकी तो समय के साथ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और चीजों के समझने के साथ होगा, नहीं तो कुछ भी इसमें आप कह नहीं सकते अचानक से। मूविंग फर्दर टू अंडरस्टैंड, Indian Road Congress 2022 is going to take place in यूपी, that's fine, not a big deal, but the point is यूपी में ही क्यों? लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कों का विशाल नेटवर्क, लगभग 162 बिग ब्रिजेस, 479 स्मॉल ब्रिजेस एंड 70
railway bridges are there. Daily 10 kilometer new road is being constructed and 9 kilometer are being widened. तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, यमुना, दिल्ली मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो ये तो एक जनरल बात है, आप देख सकते हैं यूपी के मैप को एटलस में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है डिफेंस कॉरिडोर। तो उसमें 6 नोड हैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट एवं झांसी। ये जरूर आप देखिए कि डिफेंस कॉरिडोर क्या है, गूगल करिए और उसके डेवलपमेंट को प्लीज देखिए आप। कमिंग फर्दर टू अनदर रेलिवेंट आइडिया, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग कि नेक्स्ट ईयर से दिल्ली में नो डिटेंशन पॉलिसी विल बी गॉन इन क्लास 5 एंड क्लास 8, बिकॉज उनका मानना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को जैसे इम्प्लीमेंट हम करना चाहते थे वैसे हम नहीं कर पाए। सो आई वुड लाइक यू टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनईपी एंड थिंक वेदर आपका यू नो नो डिटेंशन पॉलिसी मस्ट बी कंटिन्यूड और शुडेंट बी कंटिन्यूड। आप देखिए एनईपी और मुझे साथ साथ में आप एनईपी और जो आपकी राइट टू एजुकेशन है उसके हिसाब से आप मुझे सोच कर देख कर और इस पर थोड़ा रिसर्च करके बताइए। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू इन द लॉन्गर रन। मूविंग फर्दर, स्टेट सेंटर रिलेशन की हम बात करते हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट राजस्थान as a very emerging hub for manufacturing also, and even Adani is over there. So Rajasthan is becoming foundation and leader in the national solar energy phenomena. So please do check what are the projects and what are the districts which are actually which are actually uh, important from the perspective of what I should say, from the perspective of both manufacturing and industrial development. This is very, very important. Similarly, let's go further and understand Niti Aayog CEO Parmeshwaran Iyer. Parmeshwaran Iyer, Niti Aayog CEO जो हैं, he had hosted an informal interactive afternoon session, but the lunch session was very, very important, not from the perspective of the place, but it was from the place, but also it was important from the perspective of the work site. That means he was asking people to gather, but not in the Niti Aayog venue, but he asked them to meet in the Delhi University. This is a very, very, uh, what I should say, a different approach to the same work, and it is really, providing a different kind of work culture. Moving further, next news item is talking about Adani Port in Kerala. So we are going to talk about the idea of coastal erosion from the perspective of protesting fishermen, whether their idea is wrong, whether their idea is right. Government is saying जो coastal erosion हुआ है, loss of livelihood या dwellings की जो बात है थिरुवनंतपुरम के पास में, that is Vizhinjam International Seaport Limited, उसके लिए they are going to have a committee, and committee is going to have former additional director at सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। पीटी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन है कहाँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर and Kandla Port Trust member. So we are going to talk about an article about this. First of all, the article, let me take you directly over there. It will be focusing upon the fact that Kerala government, being a communist government, which is actually focused upon and running because of the mobilization by the masses। कम्युनिज्म का जो पावर है वो आपके peasants हैं और वर्कर्स हैं। सो दे आर सेइंग that how being a non-party mobilization जो कि अभी हो रहा है, it is not a political mobilization by a marginalized
section of society, that is fisher folk, why government is not taking into consideration their concerns? It is saying Kerala is a highly literate state, और सी इरोजन भी इंटेंसिफाई हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंपेरिकल स्टडी की जाए, which is given for 40 years. This Vizhinjam port is given for 40 years to Adani Group. There must be a key investigation. It is also getting financial support from the government. So the question is about 42 marine fishing villages having population of 1,73,000. कोई और country होती तो उसकी तो population ही हो जाती. Density is more than 4,000 people per village. The question is erosion जो हो रहा है land का, and accretion. तो इरोजन और एक्रीशन, मेजर एक्रीशन जो हो रहा है बीच के अंदर, तो हो क्या रहा है कि obviously when the port is going to be there, it want a certain बीच पे certain सी शोर का एरिया तो चाहिए ही भाई. 3.2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रेक वाटर एरिया चाहिए उसको. डोंट यू थिंक उससे रिक्लेम करेगा वो कोस्टल वाटर को ऑफ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी? डोंट यू थिंक कि शोर लाइन उससे चेंज होंगी? डोंट यू थिंक कि क्लाइमेट चेंज के ज़माने में इसकी इंपेरिकल स्टडी होनी जरूरी है? डोंट यू थिंक कि जो कंस्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से जो है फैमिलीज की लिवलीहुड और जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो नेचुरल एक सिस्टम वहां पर बना हुआ है सदियों से, वो सब ब्रेक हो जाएगा? what the why Adani Group is not talking about it? If it is even talking about, then we must write in our answers कि उसका भी रोल है. That is how this article is very very important. It is not against the state designing or implementing the project, but it must find the rural discontent क्या है और क्यों है. That is what I want you to take through when I was talking about it. Coming to the next point. Okay, coming to the next point, which is actually the Nobel Prize winner. So the Nobel Prize is given to Nobel Peace Prize, actually I should say, it is given to the work on civil society for democracy, Alice Bielitsky from Belarus. He is given. So आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर किसको मिला, इस साल किसको मिला. And for example, 2021 Nobel Peace Prize was given to journalist Maria Ressa and Dmitry Muratov, and they represented all journalists who stand for the ideal that is democracy and freedom of press अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. सो ज़्यादा डिटेल तो इसकी नहीं चाहिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं खुद ही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो आई एम टेकिंग अप अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आर्म्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब बात की जाती है, मिलिट्री स्पेंडिंग की इंडो पैसिफिक रीजन में बात की जाती है, तो इंडिया कहाँ है? सो इंडिया इज एक्सपोर्टर नंबर 4 एंड इंपोर्टर नंबर 1. लार्जेस्ट सप्लायर कौन है इंडिया को? रशिया. अब आप सोचिए, अब आप सोचिए स्पेंडिंग भी एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की नंबर 2 पे है. पहले नंबर पे ऑब्वियसली चाइना होगा, तो चाइना का लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? वो भी रशिया है. यानी लार्जेस्ट सप्लायर, दैट मीन 77% इज डिपेंडेंट, यानी 77% डिपेंडेंस ऑफ चाइना इज ऑन रशिया. So China is exporter number 1, but still it is dependent on Russia 77%. India is also exporter number 4, but it is dependent on Russia. That is importer number 1 for India is Russia. इंडोनेशिया को आप देखिए, दैट इज यूएस. जापान को आप देखिए, दैट इज यूएस. यूएस इज जापान इज 97% dependent on US. South Korea, US. Malaysia is dependent on Spain. Pakistan, again China. Singapore is dependent on France. Taiwan is on US 100%. Thailand is on South Korea 25%, and Vietnam is on Russia 66%. So this gives an idea. Arm procurement, arm industry, ये की एरियाज हैं. आप जब इंटरनल सिक्योरिटी जनरल स्टडीज पेपर 3 में पढ़ते हैं तो आप वहाँ ये आइडियाज लेके आ सकते हैं. जब इंडिजिनाइजेशन की बात होती है, देन ऑल्सो यू कैन ब्रेक दीज आइडियाज इन जनरल स्टडीज पेपर 3 ऑल्सो. मैरीटाइम थिएटर, इंडो पैसिफिक रीजन इज ए मैरीटाइम थिएटर. क्यों? ये सारी कंट्रीज को आप देख लीजिए, चाइना के बिहेवियर को देख लीजिए, यूएस के रूल को देख लीजिए, तो उसको हम मैरीटाइम थिएटर ही बोलेंगे.
Similarly, one more interesting thing is here about chairs. What is the history of chairs in India? लेकिन इंडिया में चेयर नहीं होती थी भाई, पहले इंडिया में मूडा होता था, इंडिया में खाट होती थी, इंडिया में आप पतलो कह सकते हो, पलाका कह सकते हो, लेकिन इंडिया में मूडा, चारपाई और तख्ते ताऊस। किसका तख्ते ताऊस? तख्ते ताऊस ऑर्नेट पीकॉक थ्रोन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां, उसकी हम बात करते हैं। अदरवाइज मैसूर हो गया, या ट्रवेनकोर हो गया, या बड़ौदा हो गया, दे हैड प्रिंसली स्टेट्स हैड द कल्चर ऑफ चेयर्स, आर्म चेयर्स और बाकी चेयर्स की बात करते हैं जब हम this came in India at like that. So this was just a book. This is just a book, but then I just thought to share with you some interesting point. That's why I shared with you. Please have a look at the significant position of Gambia, Senegal. ये सब हैं कहाँ? अफ्रीका का आपको एटलस देखना चाहिए. That is very very important. Coming to the worldly voice thought, an empty vessel makes the loudest noise. बिल्कुल सच है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे फिर वो बाकी बोलने की बात हो. It makes the loudest noise so that they will have the least wit आर द ग्रेटेस्ट बैबलर्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, जो हमेशा अपने आप को प्रूव करने पे लगे रहते हैं, दे हैव द लीस्ट नॉलेज, दे हैव द लीस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस. They will try to convince you, but the one who are conversing with you, they are the better judge. The one who are talking to you, they are maybe a better well wisher for you. So this is what you need to understand in this context. Coming to a very very important and innovative set of ideas, जब आप बात करते हैं कि हाउ इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड, so I am just providing you with some innovative ideas. We have discussed in one of our previous lectures about Chile's constitution, जो कि चेंज होने जा रहा था. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टॉकिंग दैट आपको फ्री हाउसिंग दी जाएगी, फ्री जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएंगे आपको. बाकी भी बहुत कुछ था उसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब पैम्पर्ड तरीके से आप देख सकते हैं. गवर्नमेंट को हैवी डेट में जाना पड़ता, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द मासेस. सो क्या कह सकते हैं हम उसको? सिविक मेच्योरिटी का एक साइन कह सकते हैं. यानी कि लोगों को निर्वाणा नहीं चाहिए, निर्वाणा एक फैलेसी है. सेकेंडली, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म नहीं चाहिए, रियलिज्म चाहिए. तो अगर आप श्रीलंका की बात करें, आप पंजाब गवर्नमेंट की भी फिलहाल बात करें, आप वेनेजुएला की बात करें, आप मेक्सिको की बात करें, आप बोलीविया की बात करें, जाके देखिए, उनको गूगल कीजिए एक एक सेकंड के लिए. दे ऑल आर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, बट दे आर अंडर क्राइसिस. अगर ऐसा ही होता, अगर बोरोइंग से ही और स्पेंडिंग से ही सारे देश बड़े बन सकते, तो सभी देशों में गरीबी कहीं होती नहीं और अब तक हम सब नंबर वन बन जाते, बट दैट इज नॉट द केस. So the government must try to have a sustainable development and must try to give them a meaningful wage. तो ये आर्टिकल कहता है कि भाई जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए. ओके, पांच प्लेसेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए उनका कहना है, और उनमें से तीन जोग्राफिक नहीं है. द क्वेश्चन इज, देयर आर नो पुअर पीपल, देयर आर ओनली पीपल इन पुअर प्लेसेस. ध्यान से समझिए, लोग गरीब नहीं है, लोग जिस जगह पर हैं वो जगह गरीब है. यानी एक इलेक्ट्रीशियन अगर कानपुर से बेंगलोर जाएगा उसको 3 टाइम सैलरी मिलेगी, अगर वो वहीं से उसको अगर स्विट्जरलैंड भेज दो तो उसको 20 टाइम सैलरी मिलेगी. तो हायर सैलरीज रिफ्लेक्ट हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट प्लेस. बिल्कुल सही बात है. इसीलिए इंडिया का जीडीपी जो है चाइना से भी ज्यादा हो जाएगा उस चक्कर में. तो अगर हर इंडियन बैंगलोर में रहता तो इंडिया जीडीपी वुड हैव बीन लार्जर देन चाइना. और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हो जाएगा उस तरीके से. तो क्वेश्चन है कि ग्लोबल वेज डिफरेंसेस जो आइडेंटिकल वर्कर्स के लिए हैं, वो पॉलिसी इंड्यूस्ड प्राइस डिस्टॉर्शन है. यही कीवर्ड है इसका जो अब तक मैंने डिस्कस किया, पॉलिसी इंड्यूस्ड प्राइस डिस्टॉर्शन. यानी कि वेज डिफरेंसेस जो इंडिया में है वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं मैसिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस डिफरेंट स्टेट्स के बीच में. मैसिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस यानी वही चीज गुड़गांव में है, वही चीज झारखंड में है, वही चीज मैंगलुरु में है, वही चीज आपकी मुर्शिदाबाद में है. दैट इज हाउ इट इज. तो यानी पांच चीजें: स्टेट्स, सिटीज, सेक्टर्स, फर्म्स, स्किल्स. स्टेट, सिटीज, सेक्टर्स, फर्म्स, स्किल्स. स्टेट्स. तो यानी स्टेट्स क्या क्या कह रहा है आर्टिकल? आर्टिकल इज सेइंग दैट इन द नेक्स्ट डिकेड मोर पीपल विल डाई than born in Karnataka. In next 20 years, 6 states in South India and West India
साउथ एंड वेस्ट इंडिया, ओके, जस्ट विजुअलाइज महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो ये जितना भी है साउथ एंड वेस्ट, they will have almost 35% of India's GDP, but only 5% of population growth. Because economic complexity breeds higher wages. Economic complexity breeds higher wages, so it is very, very important to maintain that status. The government provide the base and the private sector offers stability and also content to it. So state जो है वो conditions create करेगा और employers जो हैं वो वहाँ वहाँ पर होंगे प्राइवेट सेक्टर के, एंड देयर विल बी दे विल बी प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स ऑल्सो, उससे हाई पेइंग जॉब्स आएंगी। ये हो गया स्टेट का एग्जाम्पल। क्या ये बिहार के लिए लागू होता है, क्या ये असम के लिए लागू होता है, अभी 10-20 साल नहीं होने जा रहा है। सिटीज, हैदराबाद हैज हायर जीडीपी देन उड़ीसा और 4 टाइम जीडीपी देन जे एंड के। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन which which is based on the fundamental principle guided policy guided by the prime minister, chief minister, and the district magistrate, it need to be revamped. District magistrate need to bring experience, understanding, and also they must understand the complexity of situation जो आप बनने जा रहे हैं। यानी urbanization must be planned. There must not be divergence between the nominal wages and the real wages. यानी nominal wages एम्प्लॉयर जो दे रहा है भाई, और रियल वेजेस जो एम्प्लॉय को चाहिए। So higher paying jobs will be attracted in cities like this, जो मतलब कि बैड अर्बनाइजेशन को खत्म करेंगे। सॉफ्टवेयर employs only around 1% of the labor force, but it generates 8% of GDP, जबकि एग्रीकल्चर में 42% of population है, but then labor force 42% है, but then it only generates 60% of our GDP. So हमारी population जो है वो जो है एक तरीके से जिसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दैट इज बेस्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। दैट इज वाई it is very very important to stop exploitation in that field. That is why it is very very important to raise the per capita income टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसके लिए हम हमेशा बात करते हैं कि हर स्टेट को, जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम उड़ीसा की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दे मस्ट प्रोवाइड दोज हाई पेइंग जॉब्स, ओनली देन इट विल हैपन। Then we talk about multinational corporation or private sector. It is providing you high wages. Labor market is now somewhat linked with the global market. So the problem is that we must have large number of micro, medium and large enterprises which must provide us high paying jobs. ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, थोड़ी सी इंडियन ग्रुप्स हो, वही सब कुछ मोनोपोलाइज कर लें। सो दैट मीन्स मोर freedom, less regulation, less licensing in any ways. स्किल्स की अगर हम बात करें तो गुड गुड वेजेस सबको मिलनी चाहिए, और जो है everybody must have good fluency in English, everybody must have good skills so that they can earn, they can learn by their minds. That is very very important. ये हम स्किल की बात कर रहे हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स वी कैन टेक अप, वेदर इट इज़, अभी हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, रूरल एरियाज में क्या क्या कर सकते हैं। कपल ऑफ डेज बैक ओनली वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल्स की मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर, और उसके बाद एग्रीकल्चर से लेकर, और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट से लेकर, उसके बाद ग्रॉसरी से लेकर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो होनी चाहिए। बट देन फॉर दैट व्हाट वी वांट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वी वांट रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी वांट state government's role इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटर, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कि भैया सरकारी नौकरी, आप सरकारी नौकरी जो है प्राइवेटाइज में, आप प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ क्रिएट करो ना, आप उसको फैसिलिटेट तो कीजिए, डिजिटाइज तो कीजिए। यहाँ हर चीज़ के लिए पैसा लगेंगे, अपने ही चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो दिस आइडिया is being discussed in the book. This is very much relevant from the perspective of ethics and XA. Kindly look into it so that we can move forward with understanding. सिमिलरली अगर मैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात करूं, या मैं बात करूं फ्रीबीज की, तो वेरी ब्यूटीफुली इट इज डिफाइंड हेयर। फ्रीबी क्या है? फ्रीबी इज ए नॉन मैरिड सब्सिडी। फिर सब्सिडी क्या हुई? सब्सिडी इज अ मनी ट्रांसफर, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, बाय द गवर्नमेंट
in an attempt to drive prices artificially below the market price. मार्केट प्राइस से कम दाम पर आपको वो चीज मिल जाती है. मनी ट्रांसफर है, मनी डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो. सो बजट सब्सिडीज जो होती हैं, दे आर डिफाइंड एज द अनरिकवर्ड कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज. लिख लीजिए इन डेफिनेशंस को. बट क्या सारी सब्सिडीज को आप मेरिट और नॉन मेरिट में डाल सकते हैं? आप डिवाइड कर सकते हैं? कैसे बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट में मेरिट और नॉन मेरिट एग्जैक्टली है क्या? क्या हेल्थ एजुकेशन मेरिट है? पॉवर्टी को एलिविएट करना नॉन मेरिट हो गया क्या? इकोनॉमिक स्ट्रेस टाइम के अंदर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, देन यू आर प्रोवाइडिंग फ्री राशन, दैट इज नॉन मेरिट और मेरिट. सो पब्लिक गुड्स में क्या आता है, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर द पब्लिक गुड्स? जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है. देन देयर मे बी ए रीजन कि आप अपनी पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आप फ्री दे रहे हो. तो बाउंड्री बिटवीन merit and non-merit is not very clear, it is hazy. So corporate tax cuts आप मेरिट कहेंगे, नॉन मेरिट कहेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स कट्स को आप मेरिट भी कह सकते हैं, व्हेन यू विल से कि भैया आप इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा वो. इसी तरह से फ्री बस राइड को आप क्या कहेंगे? वुमेन मोबिलिटी को बूस्ट करने की बात करेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, या नॉन मेरिट सब्सिडी कहेंगे? फ्री लैपटॉप को आप क्या कहेंगे? फ्री मिक्सीज इन तमिलनाडु को आप क्या कहेंगे? सो दैट इज हाउ इट इज. बट देन expenditure is there, revenue is gone. Targeting beneficiaries is very, very important. Ease of burden is very important. Targeted in a manner in which empirically it can be found out. But there is lack of data. So that is why कोई भी फ्री भी जो इंड्यूस करती है बर्डन को, उसको हमें अकाउंट करना ही पड़ेगा. बजट की बोरोइंग्स में कहीं ना कहीं उसको दिखाना ही पड़ेगा टू बी ट्रांसपेरेंट. इससे हमारी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पे फर्क पड़ता है. इससे हमारा सर्विस, जो हमारी स्टेट, हमारे राज्य की, हमारे देश की जो एबिलिटी है अपने डेट को सर्विस करने की, जैसे आप ईएमआई देते हैं, उस पर भी फर्क पड़ता है. दैट इज वाई दैट इज वाई 15th फाइनेंस कमीशन विच वाज हेडेड बाय एनके सिंह सर, द एफआरबीएम, दैट इज फिजिकल जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरबीएम, मुझे पहले बताने दीजिए. तो एफआरबीएम जो है, रिपोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी ए फाइनेंशियल काउंसिल. एफआरबीएम रिपोर्ट से देयर शुड बी ए काउंसिल. एफआरबीएम रिपोर्ट का एक फाइनेंशियल काउंसिल बना दीजिए. और उस काउंसिल का रोल होगा इंडिपेंडेंट फोरकास्ट करना की मैक्रो जो फैक्टर्स है उनके ऊपर, रियल भी और नॉमिनल भी. रियल ग्रोथ हो सकता है भाई थोड़ी हो रही हो, नॉमिनल में आप बहुत ज्यादा बोल दोगे, फिर आप कैसे चलेगा? जैसे अभी टैक्स की बात कर रहे हैं हम, इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया, एक्चुअल में क्या हुआ? इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए ना. और एक्स पोस्ट फैक्टो रोल का मतलब हुआ कि उसको जो है कैसे गड़बड़ हो सकती है उसको भी वो देख लेगा. सो एफआरबीएम की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया. लेकिन यूनियन और स्टेट दोनों को मिलकर ऐसा करना चाहिए. स्टेट को कंप्लाई करना चाहिए फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क को, क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजटरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना काम नहीं हो सकता. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजटरी मैनेजमेंट. तो फ्रीबी जो है इजीली डिफाइन नहीं हो सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर टॉकिंग अ सॉल्यूशन व्हिच कैन बी देयर, एंड यू कैन ऑलवेज राइट इन जनरल स्टडीज पेपर 2, 3 एंड आल्सो इन एसए, एंड पीटी में भी क्वेश्चन इससे आ सकता है. मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अगर हम बात करें सोसाइटी की, अगर हम बात करें एक वर्ड की, मैं आपसे बात करता हूं बहुत जल्दी से, टेम्परेंस. व्हाट इज टेम्परेंस? तो यानी पॉवर्टी, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये हमारे समाज में मान लो पाया जाता है. लेकिन आप ये तो मानेंगे दारू से, अल्कोहल के ड्रिंकिंग से ये बढ़ जाता है. सो टेम्परेंस मूवमेंट, यानी कि जिसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं आज की डेट में बिहार में, वो टेम्परेंस मूवमेंट इंडिया में 1880s में शुरू हुई. और गांधी जी का कहना था कि भाई मैं स्टेट के अगेंस्ट हूँ जो दारू को इंकरेज कर रहा है. मैं दारू के इस पर अगेंस्ट नहीं हूँ, वो तो होना ही चाहिए. गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि स्टेट मस्ट यूज फोर्स एंड देन इट शुड इनकरेज प्रोहिबिशन, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे, और हम आज की डेट में बोलें तो एक्साइज और रेवेन्यू का बहुत ही बड़ा साधन है, इसीलिए जीएसटी में भी नहीं डाला गया अल्कोहल को. कोई स्टेट नहीं छोड़ना चाहता, पुलिस स्टेट नहीं बनाना था गांधी जी को. सो गांधी जी अंडरस्टूड दैट द लॉ वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर इज लिटिल नीड टू इन्फोर्स इट. सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे बिहार का हाल हो गया है.
तो इंडिया में एक कल्चर रहा है एंशियंट टाइम से एब्स्टिनेंस का, अपने आप को रोकने का, अपने अपनी शपथ लेने का। सामाजिक एक दबाव रहा है। माता पिता के सामने पीना गलत माना गया है, बड़े परिवार के बुजुर्गों के सामने पीना हमेशा से गलत माना गया है। लेकिन अर्बन मोबिलिटी या बाकी स्ट्रेस, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, या फिर सोशल मीडिया का रोल, या फिर एस्पिरेशन, या फिर चल भाई भाई पी रहा था मैं भी पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, या फिर ग्लैमर और ऑरा में पीना, इसने जेंडर वायलेंस को भी बढ़ा दिया है। इसने स्ट्रीट और घरों में भी दिक्कत की है। इसने पॉवर्टी को भी बढ़ा दिया है। इसने घर भी बर्बाद कर दिए हैं। So there is no positive effect of alcohol on the body that has been proved by Lancet study. और वेस्टर्न कल्चर का ये आइडिया इंडिया को इतनी बुरी तरह से अपनाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द ओल्डर कल्चरल एंड रीजनल नॉर्म्स दे वर डेफिनेटली वर्किंग। लेकिन एस्पायरिंग अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास, उसके लिए तो अल्कोहल की अब दुकानें खुल गई हैं, अल्कोहल शॉप हो गया है। अल्कोहल पीना एक मतलब इट इज सीन एज अ काइंड ऑफ यू नो नॉर्मल। अगर आप नहीं पी रहे तो इट इज एब नॉर्मल। सो करप्शन is there in the production, distribution, and also consumption of alcohol. And illegal alcohol भी होती है और आपकी illicit alcohol भी होती है. There are deaths also because of poisoned alcohol एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो. So this is a policy dysfunction. This is a policy dysfunction. Village culture discourages drinking, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सोशलाइजेशन चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल ड्रिंकर्स बढ़ रहे हैं। फिर एक मॉडरेट ड्रिंकर की हम बात करते हैं तो ऑल ड्रिंकिंग रिस्क जो है वो सोशली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को बढ़ाती हैं. That is what I want to convey. So this is one of the beautiful ideas which is given for society paper 1 and also for sociology optional. Please see from both the perspectives. It is a wonderful writing. Then moving further, let's see what else we can take up here in terms of Indian leaders. They are most comfortable in messaging. वो मैसेज करते हैं 75 इंडियन से कि वो बिजनेस जो करते हैं कोई भी बिजनेस दे डू इट वाया मैसेजिंग. उनको अच्छा लगता है मैसेज से करना rather than visiting a website, rather than going to a survey, or rather than doing by email. Even I also work through messages. It is also a kind of a communication and a model which brings success to candidates working. Biden government clamps down on China's access to chip technology. That is important. चाइना बाइडेन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट जो एक्सेस है सुपर कंप्यूटर्स के लिए उसको वो रोकना चाहता है चाइना के लिए. इट वांट्स कि चिप का एक्सेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो एक्सेस है दैट मस्ट बी स्टॉप फॉर चाइना सो दैट वो सुपर कंप्यूटर्स एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज ना कर सके टू इन ऑर्डर टू हैव यू नो हाई एंड हाई एंड डिजाइंड आर्म्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज. इकोनॉमिक और उसके मिलिट्री एम्बिशंस को क्रश करना चाहता है. So that's a good step in that direction. Now taking up directly, very, very important other development. This we have already discussed when I told you the complex constitutional question, that is the Scheduled Caste Order 1950 Supreme Court status. ये हम already discuss कर चुके हैं. Government has given 2 years for that. Let's move further and see what more news item we can take up. Please do join us for individual and also for smart studies. And it is a very, very tough and demanding process. We are there to help. We are there to suggest you in a reasonable and in a smart manner. Definitely, you have to work hard. There is no shortcut. We have already discussed about the RBI e-paper concept. It is given here also. Let me show you. It is here.
So as I told you, CBDC we have already discussed that. आर्किटेक्चर जो होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह हो सकता है, या फिर सेंट्रलाइज एंड हाइब्रिड ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी जो इसके फीचर्स होते हैं ब्लॉकचेन के वो हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा एक पायलट टेस्टिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट सर्विसेज विल आल्सो बी देयर। दिस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो हमारा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर लार्जली, हम उससे पहले और सिंपल बात कर लेते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी आज मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज कर रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि हमें सर्विस सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए। ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन, इफ यू सी इन इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि भाई सर्विस सेक्टर को हम करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग को करें, कि बिना मैन्युफैक्चरिंग को किए हम टॉपर हो सकते हैं कि दुनिया में। बहुत मुश्किल है, ऐसा करके क्वेश्चन कहता है। फिर आपको आपकी टिप्पणी, यानी यू प्लीज कमेंट ऑन इट, यू प्लीज एग्जामिन दैट। सो हमारे पास चीप लेबर है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, then we are realizing that it will not remain cheap forever, and then we are now thinking for manufacturing sector to be rising up. So the point is that service sector is our very big, it is contributing 55% of the GDP, but size alone is not important as the article says. So what we should do? So Simon Kuznets, the father of GDP, okay, GDP is measure of wealth and it is not measure of welfare. कितनी खूबसूरत बात की गई है। GDP is measure of wealth, it is not measure of welfare. आपका GDP बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक judicious, justified और एक proportionally equity based society हो. That is not what he's saying. Our service sector is largely manned by low to unskilled labor force. 80% जॉब किस में है आपकी? कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल में है। इंडिया, अभी मैंने आपसे ऑलरेडी बात की थी, लेस देन 1% इज इन द आईटी सेक्टर। स्किल्ड पॉपुलेशन मस्ट बी एट द हायर लेवल। इंडियन डॉक्टर्स आर नॉट गुड रेफरेंस पॉइंट, ऑब्वियसली वो यूके और यूएस में जाके हो जाते हैं, पर यहाँ तो बात नहीं होती। एंड देन आवर हमारा सर्विस सेक्टर इज ऑब्वियसली इट इज बिकमिंग in some areas only it is world class, not in everywhere. And manufacturing sector after coming at a certain level only will reflect the qualities and skill of service sector, जैसा सर्विस सेक्टर जैसा वेस्ट में हुआ। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द ईस्ट, दिस इज व्हाट हैपेंड इन जापान एंड कोरिया। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वो उन कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं दैट मेक मशीन्स विच मेक मशीन्स, you know, he will invest in such companies which that make machines which make machines. आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो मैसेज इज क्लियर, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को हमें स्ट्रेंथन करना है, इनोवेशन और डिफरेंशिएशन लेके आने हैं, और फिर सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली उससे लिंक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट none of them can happen we spend if we are not going to spend very high on R&D. R&D हमारा बड़ा होना चाहिए। तो you can see that everything is linked with other idea, that if we are going to have a good high R&D, if we are going to have skillful engineers, if we are going to have skills in all sectors, then only it can rise. For example, IT sectors, it is employing 3 million people, but in US, with about one fourth of India's population, same sector is having 12 million people. साउथ कोरिया का आईटी सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग और आर&डी तो वहाँ ही है। दैट इज वाई आवर पॉलिसीज मस्ट वर्क इन दैट डायरेक्शन। मेंस के आंसर में ये चीजें आनी चाहिए। सो दैट इज वाई व्हाट इज रिक्वायर्ड, ए मैच्योर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ऑल्सो ग्रो, वी वांट ए थ्रॉबिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दो वो भी लिंक होगा हमारे सर्विस सेक्टर से। वी हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव टू गो फॉर machine and algorithm learning. We have also to see that our export sector must do well. तो अभी हमारे मोदी सर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ऑलरेडी कहा था, वी विल बी लीडिंग द फोर्थ यू नो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दीज आर द पॉइंट्स फॉर दैट। सो अभी हमने अभी भी सेमीकंडक्टर की बात भी की थी, दैट दे आर गोइंग टू बी एन इंडस्ट्री, देयर गोइंग टू बी अ फैब इंडस्ट्री ओवर हियर। सो इंडियन एक्सपोर्ट्स में भी जो है हाई इंपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। बट फॉर दैट हमें क्या चाहिए? लैंड एक्विजिशन हमारा फास्ट होना चाहिए, हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक्स ऑफ सर्टेन टाइम, इट saturates and then only it gives the best. But then in India also the same process can be there, but in a little different way. That is what we are trying to discuss over here. Let's move further and take up other
In the Business Line newspaper, I wanted to discuss very important one thing, India's new multi-alignment. It's not working. Okay, let's move further. The article is talking about Dravidian urbanism. वैसे तो द्रविडियन अर्बनिज्म कुछ नहीं होता, इट इज अ की पॉइंट, बट लेकिन अभी द free services and the duty which the chief minister has been talking that I am providing to the people, it is my duty to provide them. So Tamil Nadu model has been created. Multiple urban centers are there rather than few metropolitan cities. Dravidian politics have worked upon the multi-pronged strategy to transform ordinary people into agents of urban transformation. यानी फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज और एफर्मेटिव एक्शन, ये पॉलिटी पेपर टू के लिए बड़े कीवर्ड्स हैं, ये यूज किए गए हैं. एंड इट इज व्हेन यू कंपेयर विद महाराष्ट्र एंड गुजरात, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट. सो हिस्टोरिकली स्पीकिंग, during K. Kamraj sir's regime or even during the time of DMK when it came to power in 1967, industrial base of Tamil Nadu, it went on to rise. Agriculture modernization also was increased by access to irrigation and motorized electrical technology. So state जो है वो स्ट्रैटेजिक फॉर्म ऑफ इरिगेशन भी उन्होंने यूज किए हैं, कैनाल और वेल्स, और साथ साथ में उन्होंने जो है एग्रो टाउन्स को भी ग्रो किया है, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप. So this has really helped the state to grow. And this has been obviously possible with the help of entrepreneurship from the lower castes. अब lower caste की जब बात की तो उसे कहते हो, हमने कहा democratization of capital. Investments आए. So in terms of anthropology, in terms of sociology, आप कह सकते हैं कि this is an example where self-made engineers, mechanics होंगे, ITI किया होगा, कुछ और किया होगा, but then they have really worked well to create an economy what is there in different landscapes, industrial landscapes of Tamil Nadu. So urbanization of Tamil Nadu has evolved in a simple way, but I mean to say in small towns, and each region is having its own specific industrial cluster. State has the highest proportion of Dalit and backward caste entrepreneurs. और ज़्यादातर कहाँ से हैं? छोटे शहर से हैं. That is why they are actually in one way reflecting, you know, the vision, the Dravidian vision of the rise of villages, because village was seen as a site of oppression, अभी भी है, और गांधी जी देखते थे village as a site of reconstruction. So Dravidian politics has promoted first of all productivist ideas ताकि social hierarchies break हो, न्यू सोशल रिलेशंस बनाए, और सेकेंडली उन्होंने क्या किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला. दोनों बातों को समझिए, एक तरफ सोशल और एक तरफ फाइनेंशियल. And then new amenities like transport, connectivity, access to electricity, medical education facilities, and so on. That is why Tamil Nadu has grown into a higher ranks. If you see renewable power energy, please do check कहाँ कहाँ पर है. If you see industrial clusters की बात है, वो भी check कीजिए आप कहाँ कहाँ पर है. So these ideas have really helped Tamil Nadu to grow into a different kind of setup. I am not talking about heritage. क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, आप एग्रो क्रॉप्स देखिए, आप उनकी कैश क्रॉप्स देखिए. They are really going to help you in understanding that what is really required in terms of development of the masses in the current, in the contemporary Tamil scenario. Going for Hindustan Times newspaper. So first let's see what is there इन पीटी की. अगर हम बात करें तो सेव द वर्ल्ड का जो हमने बात की थी, पहले भी हमने की थी, नासा का डार्ट, डार्ट स्पेसक्राफ्ट. फिर मल्टीपल मिशंस आर बीइंग देयर. फॉर एग्जांपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड नासा's लेटेस्ट शेड्यूल पुट द आर्टिमिस 1 लॉन्च इन द कैलेंडर फॉर नवंबर. तो ये नवंबर में लॉन्च होगा आर्टिमिस 1. तो आर्टिमिस 1 जो है वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. सिमिलरली
हरिकेन आयन जो उसने फोर्स किया था वापस आने को आर्टेमिस को, क्योंकि एसएलएस रॉकेट जो है मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो कभी कभी भी डिजाइन किया हो, 2 अटेम्प्ट में भी अभी तक गया नहीं है। तो गोल क्या है आर्टेमिस का? एसएलएस को टेस्ट करना, और ओरियन क्रू कैप्सूल जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उस रॉकेट को 6 वीक मिशन पे लेके जाना। तो आर्टेमिस विल पे फॉर द फर्स्ट क्रूड एसएलएस ओरियन मिशन एन आउट एंड बैक फ्लाइट अराउंड द मून डेजिग्नेटेड आर्टेमिस 2, वो 2024 में जाएगा। दिस इज वन थिंग दे आर डूइंग। सेकेंडली, जो वेब है, आप मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर ऑन जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट जो मिला था लुक, इसी साल जुलाई में फोटोग्राफ्स आए थे। पार्टनरशिप है उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी की, एंड वेब ने शार्पेस्ट इमेज दी है यूनिवर्स की आज तक की। इट इज गोइंग इनटू, अर्ली यूनिवर्स कैसे बनता था, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। एंड देन वेब ऑल्सो रिवील्ड ग्रुपिंग ऑफ गैलेक्सीज एंड सो ऑन, डेथ ऑफ स्टार, एंड ये सब सारी चीजें हमारी जो है पीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में फार अवे जेंट गैस प्लांट्स में कैसे होते हैं। सो यू मस्ट गो एंड चेक आउट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जेम्स वेब पे, बहुत मुश्किल है, इट इज पॉसिबल in some way. So we must have the all clarity of understanding. Similarly, कैपस्टोन क्यूबसेट देखिए आप क्या है, परसिवरेंस मिशन भी आप देखिए क्या है, दोनों आपको पता होने चाहिए इन फ्यू लाइंस, जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। जो है ए, वो मून की चारों तरफ जाएगा या क्या करेगा या कौन उसको लॉन्च कर रहा है, दिस इज व्हाट दे कैन ऑलवेज आस्क यू from the examination perspective. This is what you have to very much understand clearly. Coming to the second point, Fatima Bibi was the first Indian female woman Supreme Court judge, I should say. Justice Fatima Devi, she is receiving an award here for Outstanding Service Society from the Lok Sabha Speaker Rabi Ray. This is a photograph over here. So Fatima Bibi was appointed in a large, आप कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड जो हमारा उस टाइम कोर्ट था, उसमें वो फर्स्ट वुमेन जज थी जो कि अपॉइंट हुई थी। आज की डेट में और भी हैं, लेकिन प्लीज